Hello students, today question is let S be the set of all values of x for which the tangent of the curve y equal to f of x equal to x cube minus y square minus 2x at x comma y is parallel to the line segment joining the point 1 comma f of 1 and minus 1 comma f of minus 1. Here s is equal to what? So we have to find the s value. Okay, so let's move to the answer. First I'm going to draw the diagram here. So this is the one line. So this is the one line and this is the second line. Okay, so this is the one line. The coordinates are given 1. This is I'm going to take minus 1 comma f of minus 1. And this one is 1 comma f of 1. I'm going to take on this one. So this line is one line. And the parallel line they are given, this is f of x. So this one is f of x equation, x cube minus x square minus 2x. And here the curve is joining here. So this is the point x comma y they are given. Understand? So this is the condition they are given. Here these two lines are parallel, right? So if the slope of this line 1 which is equal to same as the slope of this line 2. Okay students, so because it is parallel line. Okay students, let's move to the answer. First I will be writing the given condition here. So f of x, I'm going to return f of x equal to x cube minus x square minus 2x. Okay students, I'm going to find f of 1, right? So they in our question they are given f of 1 and f of minus 1. So I'm going to substitute f of 1 value equal to 1 cube minus 1 square minus 2. So 1 cancel here, the value equal to minus 2 and f of minus 1 value. So f of minus 1 equal to 1 cube equal to minus 1 and 1 square equal to 1, right? And minus 2 into minus 1, so plus 2. So minus 2 plus 2 will cancel, so the value equal to 0. So here I'm going to substitute here. So the points are, therefore the points are here, first value f of 1 comma 0, f of 1, right? So 1 comma f of 1 value equal to minus 2. And this point minus 1 comma f of minus 1. Minus 1 comma f of minus 1 value equal to 0. So these are the coordinates we will found. So here now I'm going to find the slope of equation. Okay, so therefore the slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is the slope formula. I'm going to substitute here. So this is x1 y1, x2 y2. I'm going to take it. Therefore I'm going to substitute here. Minus 2 of minus 0 divided by 1 of minus 1. So the value equal to minus 2 by 2, which is equal to minus 1. Therefore m equal to minus 1. They given slope equal to minus 1. Okay students, now I am going to find the dy by dx value. So the dy by dx value, this is the y equation, right? So this is the y equation. I'm going to differentiate here. So if I differentiate this one, the value equal to 3x square minus 2x minus 2, which is equal to 1. This is slope value there. Next I'm going to take this value to the left hand side and this value I'm going to cancel. Now I'm going to factorize this equation. If I factorize this equation, minus 1 and 1. Okay, so the value equal to 1 1 so 1 1 2. Okay, so I'm going to, if I factorize this one, the value equal to x minus 1 and 3x plus 1, which is equal to 0. Okay, so this individual value which is equal to 0, right? So I'm going to return here. So x minus 1 equal to 0 and 3x plus 1 equal to 0. Now I'm going to solve this one. Therefore x equal to minus 1 here and x equal to, this is x equal to plus 1 and x equal to, this is minus 1 divided by 3. Okay, so therefore x equal to 1 comma minus 1 by 3.
So this is the value for our equation. Given conditional location, therefore the x is equal to 1 comma minus 1 by 3. Okay, so this is the value. Okay, students, thank you. Hello students, the question given here is if the tangent to the curve y is equals to x cube plus ax minus b at the point 1 comma minus 5 is perpendicular to the line minus x plus y plus 4 is equals to 0, then which one of the following point lies on the curve? So we have been given a curve. Curve is y is equals to x cube plus ax minus b, and a tangent is drawn on this curve at the point 1 comma minus 5. Therefore, we can say that 1 comma minus 5 lies on the curve. Point P 1 comma minus 5 lies on the curve because at this point a tangent is drawn to this curve. So therefore, this point will satisfy the equation of the curve. So by putting this point, we get minus 5 is equals to 1 cube is 1 plus a into 1, x is 1. So a into 1 is a minus b. So from this, we get a minus b is equals to minus 6. Therefore, we have equation 1 is a minus b is equals to minus 6. Now we'll find out the slope of the curve. So y dash will be by differentiating the equation of the curve, we get 3x square plus a. Now y dash at point 1 comma minus 5 will be equals to 3 plus a. So this will be the slope of tangent. So this is slope of tangent. Now in the question we have been given this tangent to this curve at point 1 comma minus 5 is perpendicular to the line minus x plus y plus 4 is equals to 0. That means the tangent and this line is perpendicular to each other. Therefore, the product of both the slopes will be equals to minus 1. Now we can calculate the slope of this line minus x plus y plus 4 is equals to 0. So slope of line will be slope of line is equals to 1 by the equation, and these tangent and line are perpendicular to each other, so slope will be equals to product of slope will be equals to minus 1. Now slope of tangent is 3 plus a, and slope of line is 1, so their product will be equals to minus 1. So from here we get a is equals to minus 4. Now this is our equation number 2. Now we will put a is equals to minus 4 in equation 1. Equation 1 was a minus b is equals to minus 6. So we have a minus b is equals to minus 6. Putting a is equals to minus 4 here. Minus 4 minus b is equals to minus 6. From here we get b will be equals to b is equals to minus 6 plus 4, and this will be equals to, so we have b is equals to 2 and a is equals to minus 4. Now we can find out the equation of the curve because we have the values of a and b. So equation of curve will be y is equals to x cube plus ax minus b. So y is equals to x cube plus ax minus b, and we have a is equals to minus 4. So y is equals to x cube minus 4x and minus b. So this will be equals to minus 2. So we have the equation of the curve, which is this, and we have to find out the points which lie on this curve. So we will put the points one by one. So first of all, we will put minus 2 comma 1 in the equation of the curve. So by putting minus 2 comma 1, when we put, first of all, we are checking point minus 2 comma 1. So we will put x is equals to minus 2. So y is equals to minus 2 cube minus 4 into minus 2 minus 2. This will be equals to minus 8 plus 8 minus 2. So this is equals to minus 2. So we are not getting y coordinate as 1. Therefore, this point does not lie on the curve. Now we will check the second point. Second point is minus 2 comma 2. So putting point minus 2 comma 2. Y is equals to, the curve is x cube minus 4x minus 2. So putting x is equals to minus 2. So minus 2 whole cube minus 4 into minus 2 minus 2. This will be equals to minus 8, and this is plus 8 minus 2. So we are getting y is equals to minus, this is minus 2, and the point was
minus 2 comma 2. So therefore if we put x is equals to minus 2, then we are getting y is equals to minus 2. That means this point is also not lying on the curve. Now we will check the third point. Third point is 2 comma minus 1. Third point is 2 comma minus 1. 2 comma minus 1. Now putting the value of x is equals to minus 1. So y is equals to minus 1 whole cube minus 4 into minus, sorry, x was 2. So we will put x is equals to 2. X is 2 cube minus 4 into 2 minus 2. This will be equals to 8 minus 4 into 2 is 8 minus 2. So this will be equals to minus 2. That means we are not getting y coordinate as minus 1 when we put x is equals to 2. So this point also does not lie on the curve. Now we will check the last point, which is 2 comma minus 2. So checking 2 comma minus 2. 2 comma minus 2. Now we will put x is equals to 2. So x is 2 cube minus 4 into 2 minus 2. This will be equals to 8 minus 2, which is equals to minus 2. So we are getting y is equals to minus 2 when we put x is equals to 2. That means this point is satisfying the equation of the curve. Therefore, we can say that 2 comma minus 2 lies on the curve. Therefore, the answer will be option number B. 2 comma minus 2 lies on this curve. Thank you, students. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि टेंजेंट टू द कर्व, और ये जो कर्व है ये पैरेलल है इस लाइन के, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. हमें बताना है कि और किस पॉइंट से ये पास कर रहा है. तो देखो, पहले टेंजेंट हमें बताना है कौन से पॉइंट से पास करना है. तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी पड़ेगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा. तो इसका dy बाई dx अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5, ठीक है, और 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 है. तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस की 1/2. तो dy बाई dx यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, क्योंकि 1/2 एक कॉन्स्टेंट है में, तो डिफरेंशिएशन इज 0. तो अगर दोनों का स्लोप यहाँ से इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2. तो 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7. तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/2. x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 7/2. ना x की वैल्यू 7/2 आ गई, तो यहाँ पे पुट करते हैं. तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7/2 प्लस के 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इज 49 बाई, यहाँ पे 4, 7 5 से 35/2 और प्लस के यहाँ पे 5. तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 49, यहाँ पे 2 2 तो 35, 2 से यहाँ पे 70 और यहाँ पे 4 5 से क्या आ जाएगा, 20. तो y इज इक्वल्स टू 49 प्लस 20, दैट इज 69, ठीक है. 69 माइनस 70, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/4. ये y की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू क्या आई थी, 7/2. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1. तो y माइनस y1 क्या है, -1/4. तो यहाँ पे प्लस के 1/4 और dy बाई dx हमारे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और x माइनस x1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/2, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है. क्योंकि हमारा क्या है, हम यही बोले कि जो टेंजेंट है ऑफ दिस कर्व, तो इस कर्व के पॉइंट्स ये आए हैं हमारे पास, तो ये आ गया. तो y यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7. तो 4y प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2 4 सा 8x माइनस 7 4 सा 28. 4 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8x माइनस के 4y माइनस 28 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 29, दिस इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आ गई. नाउ ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो ये किस पॉइंट, जिस भी पॉइंट से पास होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो ये हम जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पुट करके देखते हैं. तो ऑप्शन ए क्या है, 1/4 और 7/2. तो ये ऑप्शन है 1/4 और 7/2. तो पुट करके देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 8/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 7/2, 4 इंटू 7/2 और माइनस के 29. तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2. तो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7 टू द 14 माइनस के 29. क्लियरली 2 माइनस यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 39.
तो ये वैसे 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ठीक है, बी क्या है 7/2 और 1/4। बी क्या है हमारे पास 7/2 और 1/4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पुट करके देखते हैं, तो 8 इंटू 7/2, 8 इंटू 7/2 माइनस 4/4 माइनस के 29। तो ये तो कैंसिल होके 1 और ये यहाँ पे 4, तो 7 4 से यहाँ पे क्या जाएगा 28 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस के 29। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 28 9 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू -2 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी क्या है -1/8 और 7। सी क्या है हमारे पास -1/8 और 7। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास क्या है दैट इज इक्वल्स टू 8x। 8 इंटू एक्स क्या है माइनस के 1/8 प्लस माइनस के 4y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा माइनस के 4y इज 7। ठीक है, और माइनस के यहाँ पे हमारे पास क्या था 29। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, -1 -28 -29। तो ये सारे टर्म्स ऐड हो गए, तो ये क्लियरली इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन दैट इज 1/8 और -7। दैट इज 1/8 और यहाँ पे -7। तो पुट करेंगे तो 8 इंटू 1/8 -4 इंटू माइनस के 7 और -29। तो 8 8 कैंसिल, यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 7 4 28 माइनस के 29। तो यहाँ पे क्या जाएगा 29 माइनस 29 कैंसिल होकर दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। तो क्लियरली डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Thank you. Here the question is given that if theta denotes the acute angle between the curves y is equals to 10 minus x square and y is equals to 2 plus x square at a point of intersection, then tan theta is equals to, here this is the equations given, that is equation 1, this is equation 2. We need to here find out the value of tan theta here. So the given question that is y is equals to 10 minus x square and y is equals to 2 plus x square. So compare those equations, so that here we get that 10 minus x square is equals to 2 plus x square here. So that here we can see that 10 minus 2 is equals to 2x square here. So 2x square is equals to 8 and x square is equals to 4 and x equals to plus or minus 2 here. Okay. So that here we can see that the value of x is equals to -2 and +2 here. So here from the value of x we need to find out the value of y here. 10 minus place -2 here, so that 10 plus whole square here. Okay, 10 minus 4 here, that is equals to value of y is equals to 6. If you substitute 2 also we get 6 only, so that the value of x comma y that is equals to -2 comma 6 and 2 comma 6 here. Okay, so from here the equation 1, that is y is equals to 10 minus x square. So here we need to find out the slope here. Dy by dx is equals to 10 minus x square, so that here we get 0 minus 2x. Here dy by dx is equals to -2 comma 6 here. Okay, -2 into 2, that is equals to 4. Here dy by dx from 2 to 6 value, 2 comma 6 the value, that is 2 into -2, that is equals to -4 here. From the equation 2 here we can see that y is equals to 2 plus x square. From the equation 2 here we get that y is equals to 2 plus x square, y is equals to 2x dy by dx here. Okay, so that here we get that dy by dx from -2 comma 6 here, -2 comma 6, that here we get that 2 into -2, that is equals to -4, and dy by dx from 2 to 6, 2 comma 6, that here we get that 2 into 2, that is equals to 4 here. Okay, so here we need to find the value of tan theta, so that value of tan theta is equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 here, modulus of, so that here we get that m1 value is -4 and m2 value is 4 here. So that here we can see that
4 minus of minus 4, that here we get that by 1 plus 4 into minus 4 here. Okay, here we get that 8 by 4 4 16, 16 minus 1 minus 16, that is equals to 15 here, modulus of, so that here we get that 8 by 15 as the final answer. So let's see the options here. So after solving this question, the tan theta value is 8 by 15. This is the final answer. That's it. Thank you. The normal to the curve y is equal to y into x minus 2 into x minus 3 is equal to x plus 6 at the point where the curve intersect the y axis passes through the point. तो अगर हमें पता है कि किसको कट कर रहा है वो इंटरसेक्ट द y एक्सिस, इट मींस x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0. तो जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन कर जाएगी y इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू इज इक्वल टू व्हाट 0 प्लस 6 इज 6. तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज 6, तो 6y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू व्हाट y इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास में जो पॉइंट आया उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,1. तो मींस हम किस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं 0,1. नाउ अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारा कर्व है इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये क्या लिखा हुआ है, तीन फंक्शन है हमारे पास में, y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6. ये हमारे पास में तीन फंक्शन है. तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, उस केस में क्या होगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ऐसे आ जाएंगे. अब की बार हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, देन प्लस y x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1. नाउ अब यहाँ पे हमें पता है किस पॉइंट से पास करता है, ये पॉइंट ये 0,1 से पास कर रहा है, तो x की वैल्यू पुट करनी है हमें 0 और y की वैल्यू पुट करनी है 1, तो y डैश इंटू 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, प्लस y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू व्हाट 1 माइन x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3, प्लस अगेन y इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ y डैश, फिर आएगा माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6y डैश इज इक्वल टू 6, तो y डैश की वैल्यू क्या जाएगी y डैश इज इक्वल टू 1. तो अब हमें पता है y डैश क्या होता है, y डैश इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन y डैश हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू माइनस 1. तो हमें नॉर्मल का स्लोप भी मिल गया और हमें पता है किस पॉइंट से पास करती है 0,1, तो इक्वेशन क्या जाएगी y माइनस y1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है माइनस 1 इंटू x माइनस 0, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं y प्लस x इज इक्वल टू 1. तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू 1. तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पासेस थ्रू द पॉइंट, तो इनमें से केवल एक ही पॉइंट है ऑप्शन 4 जिसके लिए x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1 है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से कितना पाई बाय 2, ए नॉर्मल टू y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट. तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन से पॉइंट से पासिस करेगा. तो मेरे कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कौन सा सही है. तो चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स लिख लेते हैं जो मेरा दे रखा है. तो एफ एक्स कितना दे रखा है मेरा, कितना tan इनवर्स ऑफ कितना अंडर रूट में ये कितना दे रखा है 1 प्लस ऑफ कितना साइन एक्स अपॉन यहाँ पे कितना दे रखा है 1 माइनस ऑफ कितना साइन एक्स. तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेरा फंक्शन. अब मुझे यहाँ पर क्या चेक कर लेता हूँ, ये मेरा एफ एक्स इक्वल टू कितना है y. तो अगर मैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 पर वैल्यू चेक करता हूँ फंक्शन की, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि एट एक्स इक्वल टू कितना पाई अपॉन कितना 6. तो मैं पाई अपॉन 6 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ. तो ये एफ एक्स इक्वल टू कितना है y है, तो y इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस ऑफ कितना साइन पाई अपॉन कितना 6 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा माइनस, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ. यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कितना
साइन पाई अपॉन ऑफ कितना 6। तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना अंडर रूट में यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन पाई बाई 6। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ कितना 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कितना 1/2। तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स अंडर रूट में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा मेरा 3/2 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। तो मेरा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, tan इनवर्स ऑफ कितना √3। तो मुझे कितना मिल गया यहाँ से, मुझे मिल गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना √3। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो √3 वैल्यू होती है tan इनवर्स में वो सॉरी tan में, तो किसकी होती है, tan किसकी वैल्यू होती है मेरी, tan पाई बाई किसकी होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो पाई बाई 3 का मतलब कितना है 60। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर y इक्वल टू ऑफ कितना tan इनवर्स ऑफ कितना tan पाई अपॉन कितना 3। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल गई, पाई अपॉन 3 मिल गई। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट मिले हैं वो कितने मिले हैं। तो पॉइंट इज कितने होंगे मेरे पॉइंट, पाई बाई 6 रखने पे मुझे कितना मिला, पाई बाई 3 मिल गया। ये वाले पॉइंट मिल गए। अब मैं यहाँ पर क्या देख लूँगा, मैं यहाँ पर क्या उतार लेता हूँ, एफ को उतार लेता हूँ। तो एफ मेरा कितना है, ये है मेरा tan इनवर्स ऑफ कितना अंडर रूट में कितना 1 प्लस ऑफ कितना साइन एक्स अपॉन यहाँ पे कितना है 1 माइनस ऑफ कितना साइन एक्स। तो मैंने इसको कितना लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस, इसको लिख दिया cos पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कितना साइन कितना पाई अपॉन 2 ऑफ कितना माइनस एक्स। सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस ही आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, कोस लिख दूंगा। तो यहाँ पे कोस आ जाएगा मेरा। तो ये क्या आ गया, मेरा कोस आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू लिखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देख लेता हूँ, मेरे फॉर्मूले क्या होता है। तो जो मेरे फॉर्मूले होते हैं उसके लिए मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x कितना होता है 1 माइनस ऑफ कितना 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना x। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना 1 माइनस ऑफ कितना cos 2x। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना है 2x है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ऐसी cos 2x का दूसरा फॉर्मूला होता है कितना 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से कितना 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कितना cos ऑफ कितना 2x। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना है 2x है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। तो इसका यहाँ पर ये कितना है, ये मेरा हाफ है, तो इसका हाफ का 1 कितना होगा। तो इसको मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ऑफ कितना tan इनवर्स। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर कितना 2 cos स्क्वायर ऑफ कितना पाई अपॉन 4 माइनस ऑफ कितना x अपॉन 2। तो मुझे यहाँ से ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इसका ट्वाइस है, यहाँ पे क्या है इसका ट्वाइस है। ट्वाइस करने पे मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली। तो अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना पाई अपॉन 4 माइनस ऑफ कितना x अपॉन 2। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसका ट्वाइस करता हूँ, ट्वाइस करने पे कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस का कितना x। तो मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू ही मिल जाएगी, ये वाली। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर x है तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x होना चाहिए, मीन्स x का ट्वाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं कितना लिख दूंगा, ये आ जाएगा मेरा कितना tan इनवर्स, ये मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर कितना, ये मेरा कितना है कोस अपॉन साइन। तो कोस अपॉन साइन कितना होता है कोट, तो कोट स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा मेरा कोट स्क्वायर ऑफ कितना पाई अपॉन 4 माइनस कितना x अपॉन 2। तो मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से मैं कितना कह दूंगा, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया मेरा tan इनवर्स ऑफ कितना कोट पाई अपॉन 4 माइनस ऑफ कितना x अपॉन 2। तो अब इस वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर tan x अगर मुझे लिखना है तो यहाँ किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 माइनस किसके x के। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना tan, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
तो यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स से मेरा 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितनी, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल गई, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, ये आ गया मेरा कितना, पाई बाई 4 प्लस ऑफ कितना एक्स बाई 2। तो मुझे फंक्शन की वैल्यू ये मिली है। तो नाउ अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो एफ डैश एक्स मुझे कितना मिलेगा, पाई बाई 4 इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू तो 0 हो गया, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2। तो मुझे ये मिल गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पर कितना होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कितना कह सकते हैं, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस का 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या है, एफ डैश एक्स है, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर कितना आ गया -2। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन निकालूं तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, मेरे जो पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट कितने हैं, मेरे पॉइंट है यहाँ पर कितना, ये कितना है, पाई कितना है, सॉरी यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये फिर जो मेरे पॉइंट होंगे, पॉइंट कितने होंगे, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो जो मेरे यहाँ पर पॉइंट मुझे मिलेंगे वो पॉइंट क्या है, जो मैंने ऊपर निकाले थे वो कौन से पॉइंट थे देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पॉइंट थे वो कितने थे, ये थे मेरे पाई बाई 6 और पाई बाई 3। तो यहाँ से पॉइंट कितने हैं, पाई बाई 6 और कितना पाई बाई 3, और स्लोप कितना है यहाँ पर, स्लोप है मेरा यहाँ पर कितना -2। तो ये स्लोप है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस कितना पाई बाई 3 इक्वल टू कितना 2 - 2 ऑफ कितना x माइनस ऑफ कितना x पाई बाई ऑफ कितना 6। तो अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ कितना आ गया, y माइनस ऑफ कितना पाई बाई 3 इक्वल टू -2x प्लस ऑफ कितना पाई अपॉन कितना 3। तो यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 2x प्लस ऑफ y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कितना पाई बाई कितना 3, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 3 कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से ये वाला इक्वेशन मिली है। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। पहले मैं सबसे पहले 0,0 रखता हूँ। तो अगर मैं 0,0 रखूँगा तो मुझे 2 पाई बाई 3 के इक्वल नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पर अब क्या रखता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ पर 0, कितना 2 पाई बाई 3। तो 0,2 पाई बाई 3 रखा मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 0 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। तो 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। तो ये वाले पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि नॉर्मल टू दिस कर्व का नॉर्मल अगर मैं निकालूं 1,1 पर, तो वो हमको बोला गया है कि क्या इन ऑप्शंस में से क्या क्या सही है, कि डज नॉट मीट द कर्व अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, इस टाइप का है। ठीक है, चलो देखो अपना क्या है, x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, ये अपना गिवन है। और 1,1 पर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमको क्या चाहिए, देखो अगर मेरे को नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो हमें पॉइंट्स तो गिवन है, हमें क्या और चाहिए, एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप दे दो, पॉइंट दे दो, हम निकाल लेंगे नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो स्लोप किसी कर्व का कैसे निकालते हैं हम, dy/dx, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट कर दो तो अपने हो जाएगा 2x प्लस, ये देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को ट्रीट करेंगे। ठीक है, दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले को ट्रीट करेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ y को कांस्टेंट मानकर x का कर दिया, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस 2x करो, और y का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो dy/dx लिख सकता हूँ। ठीक है, और माइनस इसका देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले y² का मैं कर दे रहा हूँ तो वो हो जाएगा 6y, और फिर y का x के साथ कर दूंगा dy/dx चेन रूल के हिसाब से, और ये हो जाएगा कितना 0। ठीक है, चूंकि हमको 1,1 पे चाहिए स्लोप।
ठीक है, तो 1,1 पर रख देते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख लेते हैं। उससे पहले 2 से पहले हटा दो, क्योंकि देखो हर जगह 2 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हटा दो। तो x प्लस y हो जाएगा और प्लस यहाँ पर x dy बाई dx हो जाएगा और यहाँ पर 3y dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो x1 और y1 रख देते हैं। तो यहाँ देखो 2 हो जाएगा प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो dy बाई dx ही वैसे बचेगा और यहाँ पर 1 रखेंगे तो -3 dy बाई dx बचेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब -2 dy बाई dx इज और +2 था इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0। इसका मतलब dy बाई dx क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और देखो ये जो dy बाई dx आता है ना, ये नॉर्मल का स्लोप नहीं होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। इसका मतलब अगर मैं mn कर दूं नॉर्मल का स्लोप इनटू या अपना स्लोप जो गिवन है वो कर दूं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 1 है इक्वल टू -1। इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना आया, नॉर्मल का स्लोप आया हमारा -1। ठीक है, तो हमको देखो स्लोप मिल गई और पॉइंट था ही अपने पास 1,1 पॉइंट था और स्लोप जो है वो -1 है। तो y इक्वल टू y माइनस y1, मतलब अगर स्लोप और पॉइंट गिवन है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 1 और m की जगह -1 और x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब कि y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2, -1 को उधर लेके चला गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 आया। तो ये है अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, अपना कर्व क्या है, अपना कर्व है x² प्लस, देखो कर्व क्या है, अपना कर्व है x² प्लस 2xy माइनस 3y², 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ये है अपना कर्व। ठीक है, तो एक तो पहले 1,1 पर ये नॉर्मल है ही, तो ठीक है 1,1 पर है ही। तो अगर ये नॉर्मल इस पर है मतलब ये इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं। क्या रखूं मैं, x की वैल्यू रखूं या y की वैल्यू रखूं, y की वैल्यू रख देते हैं। चलो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस एक्स आएगी, तो 2 माइनस एक्स यहाँ पर रख देते हैं। तो x² प्लस 2x और 2 माइनस एक्स वाई की जगह -3 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो x² प्लस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4 हो जाएगा, 4x और माइनस 2x² हो जाएगा, -3 टाइम्स होगा इसका स्क्वायर खोल लेता हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस x² होगा -4x। ठीक है, इक्वल टू जी। तो ठीक, तो यहाँ से देखो x² माइनस 2x² माइनस x² हो जाएगा और प्लस 4x अपना चल ही रहा था। ठीक है, और अंदर का भी देख लेते हैं। तो अंदर देखो ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -3x² हो जाएगा और यहाँ पर 12x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा -4x² और ये देखो 12 और 4 16 प्लस 16x और ये -12 इक्वल टू 0। और मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड -4 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा अपने पास x²। ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा -4 से और 4x और यहाँ -3 आ जाएगा, लेकिन माइनस से हम डिवाइड किया था ना तो +3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है कि भाई इसको फैक्टराइजेशन कर लेना है, x की वैल्यू निकाल देना है। तो x की वैल्यू निकालो, तो x² माइनस 3x इसको कर लो और -x प्लस 3 कर दो। 4x को लिख सकता हूँ ना -3x माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से x को कॉमन किया तो x -3 आया, यहाँ से -1 को कॉमन किया तो x -3 आया इक्वल टू 0। तो x -3 को कॉमन किया तो x -1 आया इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। ठीक है, चलो
तो देखो x इक्वल टू 1 पे हमको पहले ही गिवन था कि y इक्वल टू 1 है, मतलब इस पॉइंट पे तो हमारा क्या कर रहा है, अपना टेंजेंट अपना नॉर्मल ही है, मतलब ठीक है। लेकिन दूसरा भी पॉइंट है, इसका मतलब कि अकेले एक ही पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है, डज नॉट मीट द कर्व अगेन, ये तो एकदम फॉल्स हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से y इक्वल टू कितना था, 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस ऑफ एक्स, तो मतलब 2 माइनस 3 मतलब माइनस ऑफ 1, मतलब जो सेकेंड बार वो कट करेगा ना y कर्व को, वो कहाँ करेगा, 3 माइनस 1 पर करेगा, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में होगा, देखो ये अपना क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ पर प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अपना प्लस एक्स एक्सिस है, मतलब इधर है, लेकिन वाई में क्या है, -1 है, मतलब इधर आएगा। तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 4th क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं। एक्स अपना पॉजिटिव, 3 और वाई अपना नेगेटिव, वाई मतलब नेगेटिव मतलब नीचे, तो इधर कहीं होगा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 4th क्वाड्रेंट हुआ। तो ऑप्शन देख लो, 4th क्वाड्रेंट में होना चाहिए मीट, वापस मीट द कर्व अगेन इन 4th क्वाड्रेंट। तो ये 4th ऑप्शन जो हो गया अपना सही हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।